recording? Okay. Good afternoon, everyone. Today's topic is just let me know if the screen is visible. Can you see the screen? Yes, sir. Yes. So today's topic is concrete quantity takeoff in Revit. Right. In the last lecture, I have covered the schedule preparation. Okay. If you have completed your model, let's say you have completed your model in all respect. You have put in your modeling stuff, column, beam, slabs, staircases, walls, and all. Okay. And then you also did the reinforcement part, which I did in the last to last lectures, right? If you were not there in the lecture, please go through those recordings. You will get to know. Okay, don't miss those recordings. Those are very important, right? So, for example, your model is complete in all respect. You go to your boss says, okay, now the model is okay in every respect. Now we are not going to make any changes. अब कोई change नहीं होने वाला है. In that case, your boss may ask you, okay, Aldrin or Nipun, just go for the estimation or BOQ preparation or quantity takeoff. Takeoff मतलब quantity calculate करना, ठीक है? So we have an advantage in Revit that once we complete our model, we can directly prepare the quantities. We can take out the quantities, whether it is a steel quantity, whether concrete quantity, okay, whether your door schedule, number of doors, number of you can say columns, number of beams, number of slabs, each and everything you can calculate. Right. In the last lecture, I showed you how we can generate new schedules. Okay. And now in continuation to the previous lecture, we are going to see how we can calculate the quantity takeoff, concrete quantity, right? So these are the do's and don'ts, active participation. Again and again, I just reiterate gadgets on D&D mode. Okay, no spamming, and you can ask relevant questions. No other works for the next 1 hour. This is the recap from the last session. In the last session, we have seen schedules, creating new schedules, material takeoff की quantities कैसे हम करते हैं, ठीक है, field and parameters, okay, and material takeoff properties. Sorry, I'm sorry. Today's agenda. Today we'll see quantity takeoff, concrete quantity takeoff, and how we can create new project parameter density, new project parameter rebar kg per meter cube, calculated parameters, question and answer. This is the today's topic, right? So I request you just open your Revit window, right? So that we can switch back directly in case if it is required. Just go and switch on your Revit, Aldrin. Have you opened? Hello. Can you see my Revit screen? Nipun, Aldrin, Revit screen visible है? Yes, sir. Visible है, sir. ठीक है, ओके. आप आई रिक्वेस्ट यू, आप भी ओपन कर लीजिए रेविट और ये मॉडल ओपन कर लीजिए जितना भी कंप्लीट किया है आपने. अगर पूरा किया है तो वेल एंड गुड. और अगर इफ इट इज हाफ कंप्लीट देन आल्सो इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. शैल आई मूव अहेड? आगे चलूं? Yes, आप sir. आगे बैक. चलिए, sir. ठीक है. सो दिस इज द मॉडल, राइट? आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द लास्ट क्लास. ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बता दूं कि लास्ट क्लास में आपके सामने हमने we just completed these staircases. You were there. Lift box बनाया था, column beam structure we have already completed. उसके बाद post that what I did is I I took 2-3 lectures wherein we saw how to place reinforcement and all. column beam में हमने कुछ reinforcement लगाया था, ठीक है. reinforcement कैसे लगाते हैं, कैसे place करते हैं, वो पूरी क्लास आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया.
स्टीरअप्स कैसे लगानी है, टाइज कैसे लगाने हैं, स्लैब का सरिया कैसे लगाना है, राइट, राफ्ट में कैसे लगाना है स्टील। सो ये हमने किया था। एंड देन उसके बाद मैंने एक क्लास में आई एक्सप्लेन्ड हाउ टू प्रिपेयर द शीट्स। जब आप फाइनल शीट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हाउ यू प्रिपेयर द शीट्स। तो ये एक शीट हमने प्रिपेयर की थी जिसमें हमने एक प्लान, कुछ डिटेल्स ऐड किए थे विद रिइंफोर्समेंट एंड ऑल, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। सो दिस इज द लेआउट प्लान, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर हमारा डिटेल 3 है, एंड वी हैव कॉलम डिटेल हियर, राइट। Detail 1 is here, wherein we have, you know, uh, we have shown these reinforcement details, and there's one more, like this thing, steel enforcement details. So I took this lecture as well, wherein I show okay how to prepare this kind of sheet, because फाइनल आउटपुट आपको क्या देना है, दिस इज द फाइनल आउटपुट। आपका मॉडल बन गया, सारी चीजें हो गई, बट अल्टीमेटली यू हैव टू इशू द ड्राइंग्स फॉर कंस्ट्रक्शन, इजंट इट? एग्री करते हैं नहीं करते हैं निपुण एंड अर्जुन? यस सर। है ना, दिस इज द फाइनल आउटपुट। आपका बॉस आपसे क्या मांगेगा, भाई मुझे ड्राइंग इशू करनी है, ठीक है, वट एवर यू हैव डन दैट इज ओके फाइन, बट मुझे साइट पर क्या इशू करूंगा, है ना, या तो फिजिकल कॉपी जाएगी या फिर डिजिटल जाएगी, डिजिटल भी जाएगी तो यू नीड टू प्रिपेयर दिस डिटेल्स ना। सो ये कैसे बनाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोज एज वेल। नाउ आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग, यू आर एबल टू सी द रेविट एंड पीपीटी विंडो दोनों ना, देख पा रहे हैं ना? दोनों देख पा रहे हैं सर। ठीक है, ओके, बिकॉज आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, होल स्क्रीन। सो क्वांटिटी टेक ऑफ कंक्रीट की जब हम करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना रेविट मॉडल ओपन करना है। वहां पर हमें वी नीड टू क्रिएट इंस्टेंस प्रोजेक्ट पैरामीटर, एक डेंसिटी का पैरामीटर बनाना है, ठीक है ना, और उसकी कैटेगरी हमें रखनी है मटेरियल्स, ठीक है, कॉमन मास डेंसिटी एज शोन इन फिगर। सिमिलरली क्रिएट अनदर टाइप प्रोजेक्ट पैरामीटर, रिबार केजी पर मीटर क्यूब, डिसिप्लिन ये रखना है, मास डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, देखो ये पिक्चर देखो ध्यान से। आई विल शेयर दीज पीपीटीज विद यू एज वेल, डोंट वरी, ठीक है ना, ये पीपीटीज भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इन केस इफ यू डू नॉट रिमेंबर यू कैन गो थ्रू पीपीटीज एज वेल, ओके। सो सबसे पहले वी विल गो टू मैनेज टैब, ठीक है, रेविट के अंदर हम मैनेज टैब में जाएंगे। मैनेज टैब में जाने के बाद वी नीड टू क्रिएट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, ठीक है, प्रोजेक्ट पैरामीटर में जाएंगे आप वहां पर। प्रोजेक्ट पैरामीटर में जाने के बाद यहाँ से हम एक नया पैरामीटर बनाएंगे, ठीक है। नया पैरामीटर में जाने के बाद हम उसका नाम देंगे डेंसिटी, उसका डिसिप्लिन कॉमन रखेंगे, एंड देन वी विल type as mass density, data type will be mass density, group parameter type will be other, यहाँ से। और इसको हम इंस्टेंस और टाइप, इसको हम इंस्टेंस लेंगे, ठीक है ना, दो ऑप्शन है, वी हैव टाइप एंड इंस्टेंस, सो वी विल सेलेक्ट इस एट इंस्टेंस, ठीक है। और मटेरियल कैटेगरी में यहाँ पर देखिए कैटेगरीज लिखी हुई है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे मटेरियल्स कैटेगरी, ठीक है, एंड ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो नाउ आई शो यू दिस इन द रैबिट, ओके। This is very important. Please be focused. Pay attention here, all of you. ठीक है? Just give me 1 minute. I'm getting a call. Yes, excuse me. So I was on a call. ठीक है, back to the script. तो
आई टोल्ड यू एज पर द पीपीटी वी नीड टू गो टू द मैनेज टैब। सबसे ऊपर देखिए क्विक एक्सेस क्विक एक्सेस टूल्स में वी हैव अ टैब मैनेज टैब। आई विल गो टू मैनेज। ठीक है, जैसे ही मैं मैनेज में जाता हूँ वी हैव सेटिंग्स पैनल ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, शेयर्ड पैरामीटर्स एंड ग्लोबल पैरामीटर्स। ठीक है, इन दो के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। करंटली यू नीड टू फोकस ऑन प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। ठीक है, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स में जैसे आप जाते हैं तो ये विंडो पॉपअप होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है। ये दीज आर द प्रोजेक्ट पैरामीटर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी किसी ने बनाए हैं। किसी ने मतलब मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर यू हैव एन ऑप्शन एडिट पैरामीटर, अगर आपको कोई पैरामीटर एडिट करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है न्यू पैरामीटर जो हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऐड पैरामीटर्स फ्रॉम सर्विस। ये जब आप एक्चुअल में फील्ड में काम करेंगे, विम प्रोफेशन में काम करेंगे, जब काम आएंगे। यहाँ से डिलीट पैरामीटर। ठीक है, so we need to focus on add new parameter. The moment I'll say add new parameter, ये देखो ये विंडो ओपन होगी जो मैंने पीपीटी में शो की है। ठीक है, यहाँ से इट इज शोइंग कि वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट पैरामीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है शेयर्ड पैरामीटर, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट पैरामीटर। प्रोजेक्ट पैरामीटर वो होते हैं जो पैरामीटर हम किसी प्रोजेक्ट के लिए डिफाइन करते हैं। शेयर्ड पैरामीटर वो होते हैं जो हम कॉमन एक पैरामीटर बना लेते हैं एंड वी कैन कॉल दैट पैरामीटर इनटू अदर प्रोजेक्ट एज वेल। जहां भी हमें जरूरत होती है हम उसको वहां पर कॉल कर सकते हैं। बट प्रोजेक्ट पैरामीटर्स कैन बी ओनली अवेलेबल इन दैट प्रोजेक्ट ओनली, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ग्लोबल पैरामीटर्स मतलब ग्लोबली उनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। एक फैमिली पैरामीटर्स होते हैं। फैमिली पैरामीटर्स मतलब उनको हम फैमिलीज जब बनाते हैं, जब क्रिएट करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें नाम देना है डेंसिटी। हमें डेंसिटी का एक पैरामीटर क्रिएट करना है। मैंने डेंसिटी दे दिया। ठीक है, इसका रोल कहाँ आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी जस्ट आपको स्टेप्स फॉलो करना है। उसके बाद मैंने इसको इंस्टेंस पैरामीटर बनाया है यहाँ से। ठीक है, डिसिप्लिन कॉमन रखा। डेटा टाइप मास डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। ठीक है ना, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू समथिंग मास एंड ऑल, तो मास डेंसिटी में मैंने कर दिया। ग्रुप पैरामीटर को चेंज नहीं करना है, डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल बी अदर्स ओनली। ठीक है, डेंसिटी नाम दिया मैंने, डिसिप्लिन को कॉमन रखा, मास डेंसिटी को चेंज किया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये कुछ और था, लेंथ था, मैंने इसको मास डेंसिटी बनाया। उसके बाद इसको इंस्टेंस था बाय डिफॉल्ट। और यहाँ से कैटेगरीज में मेरे को सेलेक्ट करना है मटेरियल्स। एम प्रेस करिए, अपने आप एम से रिलेटेड सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको वहां पर लेके जाएगा। मैंने इसको चेक कर दिया। ठीक है, सिर्फ मटेरियल्स को मैंने ऑन किया। आई गो टू पीपीटी बैक। पीपीटी में मैं जाके चेक करता हूँ कि मुझे क्या करना है। मैनेज में मैं गया एंड देन मैंने नया पैरामीटर क्रिएट किया एंड देन आई प्रोवाइडेड द नेम डेंसिटी, चूज एज chose as instance, discipline will be common, data type will be mass density, group parameter will be other, and from here, from the categories I need to choose materials and then press OK. Right, so I'll press OK here. Right, so one parameter, density parameter has been prepared over here, you can see from here. ठीक है, ये पैरामीटर यहाँ पर बन गया है, मैंने ओके किया। राइट, उसके बाद कॉन्क्रीट क्वांटिटी टेक ऑफ शेड्यूल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, नाउ फ्रॉम प्रोजेक्ट ब्राउजर। ठीक है, शेड्यूल्स में जाना है, न्यू मटेरियल टेक ऑफ सेलेक्ट करना है, कैटेगरीज को मल्टी कैटेगरी सेट करना है। मटेरियल टेक ऑफ प्रॉपर्टीज विंडो विल ओपन, सेलेक्ट द फॉलोइंग फील्ड्स एंड क्लिक ऐड पैरामीटर आइकन, क्लिक ऑन कैटेगरी टाइप माउंट ये दी बार। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स मुझे सेलेक्ट करने हैं फील्ड से। ओके, एंड देन ओके, पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आई मीन द फर्दर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑन द प्रोजेक्ट ब्राउजर। देखो ये इधर प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज निपुण पहली बार कर रहा है। दिस इज द प्रोजेक्ट ब्राउजर पैलेट, ये पूरा प्रोजेक्ट ब्राउजर पैलेट है। ठीक है, किस फ्लोर में काम कर रहे हैं, कौन से व्यू जनरेट हो रहे हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने एल सेक्शन हैं, डिटेल एंड ऑल, ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। लेजेंड्स, स्केड्यूल्स, ठीक है, शीट्स, कितनी शीट्स बनाई, क्या फैमिलीज हैं, क्या ग्रुप्स हैं, ऑल दोज इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड फ्रॉम हियर। और लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव प्रॉपर्टीज पैलेट, ये प्रॉपर्टीज पैलेट होता है। इधर किसी भी
एलिमेंट से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, उसकी हाइट, कंस्ट्रेंट। ओके, नाउ हमें क्या करना है, वी नीड टू प्रिपेयर अ स्केड्यूल। तो मैं स्केड्यूल पे आ गया यहाँ पर, देखिए स्केड्यूल पे आने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, और उसने मेरे को बोला न्यू मटेरियल टेक ऑफ एज पर पीपीटी। हमें क्या करना है, मटेरियल टेक ऑफ करना है, मटेरियल को क्वांटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है, उसकी क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है। तो मैंने न्यू मटेरियल टेक ऑफ किया, ठीक है। जैसे ही मैंने मटेरियल टेक ऑफ किया, यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि फिल्टर लिस्ट में क्या सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं मेरे पास, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। बट मैंने क्या सिलेक्ट किया, मल्टीपल कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर भी मल्टी कैटेगरी मटेरियल टेक ऑफ। मल्टी कैटेगरी मतलब मोर देन वन कैटेगरी। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं स्ट्रक्चर की क्वांटिटीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ या फिर आर्किटेक्चर की करना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू डू दैट, आप वो यहाँ से वो भी कर सकते हैं। सबको चेक चेक नन कर दीजिए, एंड देन जिस भी for example you want to just focus upon structural category, you can just check structural category, or you want to focus upon MEP category, you just check MEP category, and बाकी सबको ऑफ कर दीजिए, राइट। सो यहाँ से कुछ चेंज नहीं किया मैंने। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैंने क्या किया, न्यू मटेरियल टेक ऑफ, न्यू मटेरियल टेक ऑफ में मैंने मल्टीपल फिल्टर लिस्ट में मल्टी कैटेगरी सेलेक्ट किया, और यहाँ से मल्टी कैटेगरी मटेरियल टेक ऑफ सेलेक्ट किया। और किसी को मैं कुछ भी, आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग, ऑल सेटिंग्स विल रिमेन सेम। आई प्रेस ओके। जैसे मैंने ओके प्रेस किया, दिस मटेरियल टेक ऑफ प्रॉपर्टीज विंडो विल पॉप अप। ये विंडो पॉपअप होगी यहाँ से, ठीक है। ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं, इनको हम बोलते हैं अवेलेबल फील्ड्स। अवेलेबल फील्ड्स, कितने फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। मतलब अगर मेरा आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ये ईच एंड एवरी डिटेल मैंने वहां पर एक्सप्लेन की है, ठीक है ना। ये पांचों ऑप्शंस आई हैव एक्सप्लेन ड्यू डिलीजेंटली ओवर देयर। तो आप उसको काइंडली देख लें अगर इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, ठीक है। तो यू विल बी कनेक्टिंग दीज डॉट्स। ये अवेलेबल फील्ड्स होते हैं। इन अवेलेबल फील्ड्स में हमें एज पर पीपीटी क्या क्या चाहिए, देखो, फील्ड्स एंड क्लिक द ऐड पैरामीटर आइकन। कैटेगरी चाहिए, टाइप चाहिए, काउंट चाहिए, मटेरियल वॉल्यूम, मटेरियल डेंसिटी, रिक्वायर केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैटेगरी, टाइप, काउंट। कैटेगरी चाहिए, ठीक है। काउंट चाहिए, टाइप चाहिए, ठीक है, एंड मटेरियल वॉल्यूम चाहिए। मटेरियल नेम, यूनिट वेट, मटेरियल डेंसिटी भी बोला है उसने। लेट अस चेक बैक। मटेरियल डेंसिटी रिबार, ठीक है, मटेरियल डेंसिटी यहाँ पर है। और रिबार है क्या यहाँ पर, रिबार इज नॉट देयर, ठीक है। ये सारी चीजें हमें यहाँ से चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं जस्ट यहाँ से जो भी फील्ड मेरे को इधर चाहिए उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, और वो वहां पर आ जा रहा है। और अगर बाई चांस मुझे सिंगल क्लिक करना है, जैसे फैमिली, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ये ग्रीन वाला बटन प्रेस करूंगा, एंड वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट वांट दिस, ठीक है, मुझे इसको रिमूव करना है या फिर बैक वापस इधर लेके आना है, तो मैं रेड वाला एरो प्रेस करूंगा एंड इट विल कम बैक, ठीक है, राइट। इस तरीके से जो भी चीजें मुझे अपने शेड्यूल में चाहिए या अपने बीओक्यू में चाहिए, वो चीजें मैं यहाँ पर उन कॉलम हेडिंग्स को अपने इधर स्केड्यूल में लाना चाह रहा हूँ। दिस इज नथिंग, दैट्स ऑल। यहाँ से ओके प्रेस करिए आप, ठीक है। ये देखिए जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, मुझे इसने स्ट्रक्चरल कॉलम का काउंट बताया। काउंट मतलब कितने नंबर है। कैटेगरी क्या है, स्ट्रक्चरल कॉलम, काउंट 1 है। टाइप मतलब किस साइज का है वो, 600 बाई 600। उसका वॉल्यूम 1.62 मीटर क्यूब है, ठीक है। मटेरियल डेंसिटी अभी नहीं आई है क्योंकि हमने ऐड नहीं की है, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा। फैमिली क्या है, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम की फैमिली से बिलोंग करता है,
फील्ड का मतलब ये था, जो मैं उस टेबल से इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ इंपोर्ट कर रहा था, वो मेरी हेडिंग्स थी बेसिकली। ठीक है ना, कौन कौन सी हेडिंग्स मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक दो हेडिंग्स और चाहिए, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज पैलेट में फील्ड्स में जाएंगे, एडिट। ठीक है, एडिट आप करेंगे, और फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट वाला भी कॉलम चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऐड करना चाहते हैं आप, मान लीजिए मटेरियल डिस्क्रिप्शन भी चाहते हैं आप, यूनिट वेट भी चाहते हैं। ठीक है, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो बीओक्यू है या शेड्यूल है उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर करेगा। लेकिन कुछ पैरामीटर्स इसमें बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे कैटेगरी बाय डिफॉल्ट होगी, साइजेस होंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर देगा। लेकिन कॉस्ट के लिए हमें कुछ एड ऑन फीचर्स इसको बताने होंगे, कुछ पैरामीटर्स, कुछ फॉर्मूलाज हमें पुट इन करने होंगे, बिकॉज इसको नहीं पता ना आप किस रीजन में काम कर रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग इन दिल्ली और ऋषिकेश और कोलकाता, सबकी जगह के रेट अलग 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 डिफरेंट होते हैं, है ना। तो इसको हमें रेट बताना पड़ेगा, एंड देन इसको हमें फॉर्मूला बताना पड़ेगा कि इस रेट के साथ भैया ये वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, तब हमारी कॉस्ट या अमाउंट आएगा। ठीक है, इसलिए वो अभी हमें नहीं बता रहा है, तो वो विल सी हम कैसे करते हैं वो चीज़ भी आई टेल यू। बट यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए मुझे, निपुण एंड एल्ड्रिन, कि ये हमने कैसे क्रिएट किया है, यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं। इफ यू हैव एनी डाउट अंटिल हियर, then just let me know, otherwise I'll go further and then complete this schedule। यहाँ तक तो ठीक है सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ फर्दर, आई विल गो टू पीपीटी। ठीक है, पीपीटी में हमने कॉन्क्रीट क्वांटिटी टेक ऑफ के ये स्टेप्स हमने फॉलो कर लिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमें क्या करना है, मटेरियल्स में जाना है। मैंने स्टैब में जाके कंक्रीट कास्ट इन प्लेस ग्रे मटेरियल सेलेक्ट करना है। कस्टम पैरामीटर्स में जाकर हमें जो मटेरियल पैरामीटर्स हैं वो विंडो में ओपन करके, टू जो कंक्रीट की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, उसको अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 2500 केजी पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी का हमने एक पैरामीटर बनाया था ना अभी ऊपर, याद है, एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया था, उस डेंसिटी पैरामीटर की वैल्यू हमें अब इनपुट करनी है। अभी तो सिर्फ हमने डेंसिटी का पैरामीटर जनरेट किया है, मतलब क्रिएट किया है। नाउ वी हैव टू टेल रेविट कि इस डेंसिटी के अगेंस्ट आपको वैल्यू जो लेना है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब लेना है। ठीक है, कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अगर स्टील होगा तो निपुण और एल्ड्रिन, हमारा डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम। अगर मैं डेंसिटी की जगह, तो सेम ही रहेगा। एल्ड्रिन, सर एल्ड्रिन अगर मैं डेंसिटी, अभी मैं स्टील की, अभी मैं करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट कंक्रीट डेंसिटी, उसकी वैल्यू 2500 केजी पर मीटर क्यूब है। इफ इंस्टेड ऑफ कंक्रीट मैं कहता हूँ स्टील की डेंसिटी, तो स्टील की डेंसिटी की वैल्यू 2500 रहेगी या फिर कुछ अलग होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। चेंज होगा ना। क्यों और क्यों नहीं होगा? अगर निपुण कह रहा नहीं होगा, आप कह रहे हो होगा, तो रीजन बताएंगे मुझे। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है एल्ड्रिन। देखो, डेंसिटी ऑफ स्टील तो फिर अलग है। हाँ तो आपने पहले बोला सेम होगा, लेकिन अलग होगा ना, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास मतलब वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग हैं, तो हमारा डेंसिटी भी अलग होगा ना, डेंसिटी की वैल्यू। कोई भी मटेरियल है उसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी। स्टील अलग मटेरियल है, कंक्रीट अलग मटेरियल है, कंक्रीट की जो वॉल्यूम अलग है, उसका मास अलग है। ठीक है, इसी तरीके से स्टील जो है उसका डेंसिटी अलग है। स्टील का डेंसिटी होता है 785 केजी पर मीटर क्यूब, वह भी होता है। ठीक है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है 7850, ये होती है 2500। ठीक है, तो ये दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आल्सो रिलेटेड टू योर साइट वर्क, सो प्लीज इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, डेंसिटी वगैरह को, है ना। Add the following calculate parameters with their corresponding formula as per image 2, set sorting grouping, calculate totals। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, हमें अब जाना है, नाउ वी नीड टू गो टू, ये जो हमारा है ना मटेरियल्स, मटेरियल्स टैब में जाना, मैनेज के अंदर। ठीक है, वहां से हमें डेंसिटी पैरामीटर की वैल्यू वैल्यू पुट अप करनी है। उसके बाद हमें ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज करके हमें यहाँ से कुछ पैरामीटर्स फील्ड्स जो है और ऐड करने हैं, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या होगा, वो कॉस्ट और क्या बोलते हैं, स्टील की कॉस्ट, कंक्रीट की कॉस्ट, टोटल स्टील वेट, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं मैनेज टैब में जा रहा हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू मैनेज टैब। मैनेज टैब कहाँ पर है, क्विक एक्सेस टूल्स जो ऊपर है, सबसे ऊपर आपके पास, उसमें ये दिस इज योर मैनेज टैब। ठीक है, कर्सर पे ध्यान दीजिए। मैनेज टैब में आने के बाद ही मैंने प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाया था, अभी जस्ट अभी 5 मिनट पहले मैंने जो डिफाइन किया था। अगेन मैं मैनेज टैब में आया और फिर मैं मटेरियल्स में, ये जो फुटबॉल टाइप सिंबल है, दिस इज योर मटेरियल्स। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास एक विंडो पॉपअप हुई। ठीक है, ये विंडो पॉपअप हुई। इस विंडो पॉपअप होने के बाद में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है, नीचे देखिए कस्टम पैरामीटर्स, बॉटम में देखिए, बिल्कुल एकदम बॉटम में। ठीक है, दिख रहा है, बॉटम में कस्टम पैरामीटर का ऑप्शन है। आई रिपीट अगेन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आई एम गोइंग टू मैनेज। मैनेज टैब में मैं गया, मैनेज टैब से अगेन आई विल गो टू मटेरियल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। मटेरियल्स में जैसे ही मैं जाता हूँ तो मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाता है। ठीक है, मटेरियल ब्राउजर ओपन हुआ, उसके बॉटम में मेरे पास ऑप्शन है कस्टम पैरामीटर्स का। जैसे ही मैंने कस्टम पैरामीटर ओपन किया तो आप देखो, मैंने जो डेंसिटी पैरामीटर बनाया था वो यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स इसमें पहले से डिफाइंड है, जो मैंने बनाया वो यहाँ पर अवेलेबल है, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू मुझे पुट करनी है 2500। ठीक है, 2500 करने से वो वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। आई विल प्रेस ओके। जैसे मैंने ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। ठीक है, अगेन अब क्या करना है, अब हमें जाना है, अब हमें जाना है, डेंसिटी पैरामीटर मैंने बनाया इमेज 1 में, कैलकुलेटेड पैरामीटर्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूले एज पर इमेज 2। ठीक है, अब हमें कैलकुलेटेड पैरामीटर्स बना रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड पैरामीटर्स कैसे बनाएंगे, आप जाइए फील्ड्स में। ठीक है, फील्ड्स में कैसे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपके पास प्रॉपर्टीज पैलेट है यहाँ पर, इसमें नीचे जब आएंगे तो फील्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, ये वाला बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये एरो आपको राइट में ले जाने के लिए, दिस एरो लेफ्ट में ले जाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये न्यू पैरामीटर आपको डिफाइन करना है, फिर से वही टेबल खुल जाएगी जो पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, ये हमें नहीं करना है अभी। ठीक है, यहाँ पर ऐड पैरामीटर्स फ्रॉम सर्विस, ये ऑप्शन हमारे अभी काम का नहीं है। जब हम रियल वर्ल्ड में, रियल क्लाउड में काम कर रहे होते हैं तो फ्रॉम सर्विस से हम ऐड करते हैं। दिस इज कैलकुलेटेड पैरामीटर, दिस इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, जो हमें फोकस करनी है यहाँ पर। ये जो कैलकुलेटेड पैरामीटर है, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर एक आपके सामने कैलकुलेटेड वैल्यू खुल जाएगा। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एज पर पीपीटी, हमें कंक्रीट की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, कंक्रीट की वॉल्यूम तो हमारे पास आ गई है, हमें कंक्रीट की कॉस्ट निकालनी है। समझ रहे हो, बोथ ऑफ यू आर विद मी ना, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। हाँ सर आ हाँ रहा सर। ठीक है, है। और बहुत ये डेप्थ मीटिंग, पर मुझे ये बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा, मुझे मोटा मोटा आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना, यू नोट नीड, यू नीड नॉट टू टेक एनी स्ट्रेस। आप तो जस्ट इसको मोटा मोटी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि रैबिट का इंटरफेस दिखता कैसे है। आपको तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ अभी कि समझ में आएगा, बट दिस इज जस्ट, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट्स इट। कोशिश करें, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। एल्ड्रिन, यस मुझे सर।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कंक्रीट की वॉल्यूम चाहिए, एक तो मेरा मॉडल रेडी है, अब मुझे एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले कंक्रीट की क्वांटिटी चाहिए होगी, समझ गए? एक चीज। दूसरी चीज, मुझे कंक्रीट का रेट चाहिए होगा उस एरिया का। 6000 पर मीटर क्यूब है, 7000 है, 8000 है, वॉट एवर, वो मैं अपना शेड्यूल से या बीएसआर से देख लूंगा। ठीक है। तो बिल्कुल वॉल्यूम सर। को वॉल्यूम को जब मैं रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी, आ जाएगी। और रैबिट कितना हम्म, इंटेलिजेंट है, रैबिट को अगर आप कहोगे कि सिर्फ मुझे कॉलम की टोटल कॉस्ट दे दे तो कॉलम की दे देगा, आप कहोगे मुझे सिर्फ बीम की दे दे तो बीम की दे देगा, आप कहोगे मुझे फ्लोर की दे दे तो फ्लोर की देगा, आप कहोगे मुझे स्टेयर केस की चाहिए, वो आपको स्टेयर केस की दे देगा, आप कहोगे मुझे सिर्फ लेवल 1 के बीम्स चाहिए या लेवल 2 के बीम्स चाहिए, ठीक है, वो भी दे देगा आपको। और आप कहेंगे अब मुझे टोटल चाहिए, ग्रैंड टोटल, वो भी दे देगा। ठीक है। तो अब वही देखेंगे हम। तो मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? मेरे पास देखो वॉल्यूम तो आ गया है, यहाँ पर देखो मटेरियल वॉल्यूम। ठीक है। इसने मुझे कॉलम का, बीम का, सबका मटेरियल दे दिया है। पहले कॉलम का दिया, फिर फ्रेमिंग मतलब बीम, बीम का दिया है यहाँ पर। अब अगर मेरे पास कॉस्ट निकालना है मुझे इसका, तो मुझे रेट बताना पड़ेगा और एक फॉर्मूला लगाना होगा, जिस फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ पर टोटल दे दे। ठीक है। तो आई विल गो टू, जस्ट 1 मिनट, आई एम शेयरिंग द I'm sharing the link, second link. ठीक है। तो मैं, ओके, लेट अस जॉइन द सेकेंड लेक्चर।